Hi guys, welcome back to my channel, Dew Scholars. As requested by many of you that ma'am please upload the RStudio videos first and then we'll go to Excel. So I'll be uploading RStudio pehle so that you can cover most of it in practice also. So I hope most of you has already watched the setup and introduction video of R and RStudio, right? And you all have set up the working directory to your systems. And today I'll be covering with the topic 1, that is the basic concept of synthesis and the assignment part. So today we'll be covering about the assignment of variable and a little bit of what are the constants and all. But I think assignment of constants and other topic will be covered in the next video because assignment of variable would take good 10 to 15 minutes and ज़्यादा long video हो जाएगी, then it's for me also to edit it and then the upload part gets delayed. So I'll upload the short video topic wise so that you are in pace with me and you can practice with that. Okay, so starting with the topic. Assignment of variables. So variables is something, as you all know, is something that's value changes over the period of time, right? Value जिसकी change हो सकती है over the period of time, that is called the variable, right? So variables हमें पता है that are used to store the data, right? So variables जैसे x, y, z, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स देते थे मैथ्स में, that are variables, जिनकी वैल्यूज हम कुछ भी रख सकते हैं according to our wish, right? तो उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, डायनामिक होते हैं the variables. और वेरिएबल्स को आर में जब हम लिखते हैं तो वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट्स. तो वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो फर्स्ट टॉपिक also we'll write in the script area. I told you about all these 4 areas in last video. So when you open the RStudio, here is what ये थोड़ा बहुत लिखा होता है. You can remove this from the console area so that your output is visible right here. Okay. So in the script area we'll write up synthesis and codes so that our output is visible in console area, and any variable value that we assign to any variable or the object that will be visible in our environment area. Here you can see environment is empty, it is written because we haven't assigned any value to it. So first of all, as I said in the last video also, we have to set our working directory and save our file so that we don't miss out on things that are already done right in the exam. So first of all, save this. Control S is the shortcut for this. You can do that in the R files, you can save that, or the working directory you have set. I set in the C drive, so यहीं पे I will make one more folder named R, and in this I can save it as the assignment of variables. आप भी कोई भी नेम्स रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली विश के साथ. तो आप जब सेव करोगे तो यहीं पे आपका नेम भी आ जाएगा, एंड जब आपका थोड़ा भी काम हो जाए सेव इट साथ के साथ, बिकॉज बीच में अगर लाइट चले जाए, कुछ हो जाए, तो योर डेटा शुड नॉट गो अवे. तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे थोड़ा सा टाइम बाद प्रेस कंट्रोल एस सो दैट आप सेव भी साथ साथ में करते जाओ. इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये फोल्डर बनवा लिया सो दैट बाद में हमें दिक्कत ना हो बार बार सेव करने में, राइट? ओके. सो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को अलॉट करना, असाइनमेंट करना सीखते हैं. तो आपको पहले बता दूँ, अगर हम आर में आर में हमें एक ऑप्शन देता है that you can make notes in R. So when you write hashtag after before anything, then you can make R use as notes area, so that codes आप कोई भी लिख रहे हो तो आपको मतलब एक तरह से हेडिंग हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए. वो चीज़ रन नहीं होगी. अगर आप हैशटैग लगा के कुछ भी चीज़ करोगे वो रन नहीं होगी. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. जैसे मैंने हैशटैग लगा के लिखा असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज़, वेरिएबल, सॉरी, राइट? तो अगर इसमें अब मैं रन करूँ, यहाँ पे रन होता है, या आप कंट्रोल एंटर दबा सकते हैं या आप रन का ये लगा सकते हैं. तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल एंटर दबाएंगे. तो आप देख सकते हैं कंसोल में कोई आउटपुट नहीं आया, वो जस्ट नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया, बट कोई आउटपुट नहीं आया बिकॉज हैशटैग लगाने से वो नोट्स की फॉर्म में कंसिडर होता है, ना कि कोड की फॉर्म में. ओके. तो सेकंड जो आपका अब ये 1 2 3 ना, ये जैसे जैसे आप नेक्स्ट लाइन में जाते रहोगे वैसे वैसे नंबर्स अपने आप आते रहेंगे. ठीक है. तो हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अलॉट करते हैं. तो x हमने ले लिया. ऑल्सो आर इज़ केस सेंसिटिव, तो अगर आप स्मॉल x ले रहे हो तो उससे काम करना है, और बिग केस में ले रहे हो तो उससे काम करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूनिफॉर्मिटी के लिए हम स्मॉल केस ही यूज़ करते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि एट द रेट और ये सब कुछ हम ये बहुत कम यूज़ करते हैं बिकॉज ये चीज़ें आर एक्सेप्ट नहीं करता है. और स्पेसेस वगैरह भी हम नहीं यूज़ करते हैं लिखते टाइम बिकॉज आर उस वो भी एक्सेप्ट नहीं करता. स्पेसेस की जगह हम या तो डॉट डाल सकते हैं, जैसे फुल स्टॉप डाल सकते हैं, या अंडरस्कोर डाल के यू कैन डू दैट. ठीक है. वो कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम कैरेक्टर्स वाले उसमें आएंगे. पहले हम वेरिएबल्स को असाइनमेंट कर देते हैं. सबसे पहले जैसे x को मैंने वैल्यू देनी है, x इज़ इक्वल टू 2, या तो आप ऐसे दे दो x इज़ इक्वल टू 2 करके आप कंट्रोल एंटर करोगे, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी. आप एनवायरनमेंट में देख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई है. ठीक है.
और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2 आ गया। बट हम आगे जो एडवांस लेवल पे जब हम कोड लिखेंगे आर में, उसमें इज इक्वल टू हम फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो इज इक्वल टू किस लिए यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हम x इज इक्वल टू, जब हम असाइनमेंट करते हैं तो इज इक्वल टू का यूज़ ना करके हम लेस देन और डैश का सिंबल यूज़ करते हैं असाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो x लेस देन डैश 2, अब मैं कोई और दे देती हूँ ताकि आपको चेंज दिख जाए। यहाँ पे अभी 2 है ना, फॉर एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स का मतलब ही होता है दैट वैल्यू कैन बी चेंज। तो जो रीसेंट वैल्यू होगी आर वो पिकअप करेगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 3 चेंज हो चुकी है। तो ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला यूज़ करते हैं मेथड टू असाइन द वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि एक आर केस सेंसिटिव है, हम स्मॉल केसेस ही यूज़ करते हैं सो दैट हमें बाद में दिक्कत ना हो कि हमने कहाँ पे यू नो बिग केस यूज़ किया और कहाँ पे स्मॉल, ठीक है। स्पेसेस अलाउड नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। ऑल्सो रिजर्व्ड वर्ड्स भी आर में यूज़ नहीं होते, बिकॉज वो वो एज अ फंक्शन यूज़ होते हैं आर के इनबिल्ट फंक्शन में कंसिडर, जैसे एक्सेल में होता है। जैसे रिजर्व्ड वर्ड्स आई मीन कि जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, इफ़ एल्स हो गया, तो ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी एज अ फंक्शन यूज़ होते हैं, तो इसको हम वेरिएबल असाइन करने के टाइम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम x की वैल्यू कर चुके हैं। अब हम y की वैल्यू अगर अलॉट करें तो y की भी ऐसे करेंगे, लेस देन डैश, और फॉर एग्जांपल मैंने 10 कर दी, ठीक है। कंट्रोल एंटर, वहाँ पे आ गया, ठीक है, 10। तो अब अगर आपने करना है ये तो अभी हमारी होगी वेरिएबल्स। अगर हमने इसको बनाना इक्वेशन के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो z की वैल्यू हो x प्लस वाई, तो आप इधर 3 प्लस 10 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे x प्लस वाई। तो आप कंट्रोल एंटर करोगे, वो z की वैल्यू ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके ही 13 देगा, ठीक है। तो यही एक ऑपरेशन टाइप हो गया, आप कर सकते हो। या आप कोई और जैसे एक एक करके करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल p इज इक्वल टू x प्लस 9 ऐसे रखना है हमने, कंट्रोल एंटर, तो आप दे सकते हो। यहाँ पे 12 आ चुका, ठीक है। 9 प्लस 3 इज़ 12 ऐसे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद आपने अगर एक्स वाई जी और ए बी सी नहीं देना है तो आप वर्ड भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एज देनी है, एज फॉर एग्जांपल 15 रख लेते हैं, तो A15 एज की वैल्यू इज़ 15, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये भी देखोगे कि ये ना ऊपर अल्फ़ाबेटिकली आएगा, क्योंकि ये इनबिल्ट ही है आर में कि अल्फ़ाबेटिकली आएगा। ये तो जैसे हम बहुत ज़्यादा जब कोड्स लिखते हैं तो कई वैल्यूज़ हम आगे पीछे अलॉट करते हैं, तो ये ऑलरेडी अपने आप अरेंज करके रखते हैं ताकि हमें बाद में ढूंढने को भी मुश्किल ना हो। बाकी ढूंढने के लिए तो यू कैन ऑलवेज यूज़ प्रिंट फंक्शन, उसमें ज़्यादा इजी रहता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। प्रिंट फंक्शन यूज़ करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट टाइप प्रिंट, ओपन दी ब्रैकेट्स। अब आपने रखना है वेरिएबल कौन सा आपने प्रिंट करवाना है, एक्स वाई जी पी एच, ये सारे हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। वेरिएबल बनाने की टेक्निक ही ये है, आप कुछ भी आगे लिख दो, उसके आगे लेस देन इक्वल टू और कोई वैल्यू डाल दो, दैट विल बी योर वेरिएबल, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट करवानी, फॉर एग्जांपल हमें एज, कंट्रोल एंटर, आप देख सकते हैं प्रिंट करने के बाद वो यहाँ आएगी, ना कि यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन पर्पस ही प्रिंट का ये है कि हम जब काम कर रहे हैं तो हमें वहीं पर दिखे कि हमारी इस वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, राइट। यहाँ पे जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो ये आगे पीछे मतलब हमें स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ गई, राइट। तो हमें कंसोल में हैंड टू हैंड दिखता जाए कि हमारी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, इसलिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो प्रिंट ब्रैकेट खोलने के बजाय आप डायरेक्ट एज लिखोगे और कंट्रोल एंटर करोगे, तब भी आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैं सिर्फ एक्स लिख के कंट्रोल एंटर करूँगी, आप देखोगे एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पे कंसोल में। आई एम टॉकिंग अबाउट कंसोल अब, ठीक है। वाई लिख के कंट्रोल एंटर, वाई की वैल्यू ऐसे सब आ सकती है जो जो आपने वेरिएबल्स असाइन करे होंगे। फॉर एग्जांपल अब मैंने, आप सब जगह देख रहे होगे कि मैंने एक्स वाई जी पी एच सब स्मॉल केस में। अब अगर मैं इसको कैपिटल में लिख देती हूँ एक्स, अब कंट्रोल एंटर करूँगी तो वो एरर दे देगा कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं असाइन करी, तो वो प्रिंट क्या करे, ठीक है।
तो ये है केस सेंसिटिव का भी, यू कैन सी कि ये कैसा है, ठीक है। तो और जो आप कह रहे हो कि ये वाला एज का वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है तो ये ऑपरेशंस भी सब कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने एज +7 किया और इसको हम कंट्रोल एंटर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 आंसर आ गया, ठीक है। बट आप चाहते हो कि इसको भी वेरिएबल फॉर्म में ही करूँ, कि मेरे को इन्वायरमेंट में दिखना चाहिए, तो आप कोई भी वेरिएबल लो, उसको असाइन करो और वही लिख दो एज +7, तो वो ए की वैल्यू 22 डाल देगा, ये देखो, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है। तो अब अगर हम बात करें अपनी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, फॉर एग्जांपल ऐड, सब्ट्रैक्ट और ये सब, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि प्लस माइनस यहाँ पे कैसे करते हैं असाइनमेंट के टाइम पे, तो वैसे ही हम बाकी सब कुछ भी करेंगे। जैसे x+y करना है, x+y कर दिया, x और y की क्योंकि वैल्यू अलॉटेड है तो वो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, जैसे मैंने एज वाला किया था वैसे x+y भी आ जाएगा। माइनस करना है तो माइनस कर लो, जस्ट लिखना है आपने ऐसे। अगर आपने इसको वेरिएबल फॉर्म में करना है, जैसे ऐड x+y ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा सब्ट्रैक्ट y - x, तो ये माइनस वाला आ जाएगा सब्ट्रैक्ट में 7, राइट। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सेम, जैसे अब मैंने करना है x की वैल्यू फॉर हमने एज के साथ करनी है, x की वैल्यू इनटू एज, कंट्रोल एंटर, यू कैन सी 45 आ चुका है, ठीक है। तो एज हमारी क्या थी 15 और हमारा x की वैल्यू थी 3, 15 3 45 ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको फंक्शन बता रही हूँ, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर रहोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा, वो आपको बस कंसोल में आंसर देगा। मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको एनवायरनमेंट में दिखता रहे कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए सिंपल है, आप कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल हमने जो z बनाया था x+y, z डिवाइडेड बाय x, कंट्रोल एंटर, तो आप देख सकते हैं 4.333 ये आ गया। बट अगर हमें ये पॉइंट्स और डेसिमल्स नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंटीजर, राइट। इंटीजर्स नेवर कंसिडर द पॉइंट्स, वो होल नंबर में ही आंसर आता है। तो इंटीजर के लिए, इंटीजर डिवीजन के लिए विल यूज सेड बाय x, क्योंकि मैं यही ले रही हूँ क्योंकि आपको दिखाना है 4 आंसर दे, कैसे देगा, इसमें नहीं दिया, सॉरी, इसमें ना इन डिवीजन में जब हम इंटीजर कर रहे होते हैं तो हमने परसेंटेज का सिंबल यूज़ करना होता है। जब आप न्यूमरेटर में लिखोगे तो फर्स्ट जो न्यूमरेटर होना चाहिए उसके बाद परसेंटेज, देन डिवाइड का साइन, और डिनोमिनेटर में पहले परसेंटेज और फिर आपका डिनोमिनेटर। तो आप कंट्रोल एंटर करोगे तो वो कंसिडर होगा। तो आप देख सकते हैं इंट डिवीजन इज़ 4, वो परसेंटेज साइन जो मेन था वही भूल गई, तो ये ऐसे करेगा, वरना आपका डिवीजन और इंटर डिवीजन में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इंटर डिवीजन में सिर्फ परसेंटेज यूज होता है, तो ये ध्यान रखना कि परसेंटेज न्यूमरेटर में बाद में, डिनोमिनेटर में पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में हम कैसे करेंगे एक्सपोनेंशियल, तो जैसे आपको पता है कि हम ऐसे करके ये सिंबल होता है एक्सपोनेंशियल का। फॉर एग्जांपल 10 का मैंने स्क्वायर निकालना है तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 100, ये आएगा कहीं पे, ये रहा, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलस, मॉड्यूलस आपको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बच जाता है वो हमें एज आंसर दिखाना है, तो वो मॉड्यूलस होता है। फॉर एग्जांपल जो ये हमने डिवाइड किया था 4.33, इसमें रिमाइंडर बच रहा है तभी वो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, राइट। तो हम ये पहले करके देख लेते हैं। मैं अगर लिखूँ, हमने करना है मॉड्यूलस, ठीक है। तो मॉड्यूलस के लिए डबल परसेंटेज साइन यूज़ करते हैं। जैसे हमने सिंगल परसेंटेज जब यूज़ किया था तो हमारा इंटीजर का आंसर आया था,
बट हमें अगर रिमाइंडर दिखाना है, मॉड्यूलस दिखाना है, तो हमने डबल परसेंटेज का साइन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 डिवाइडेड बाई 3 करना है तो 10 डिवाइडेड बाई 3 नहीं लिखूँगी मैं, 10 डबल परसेंटेज 3 लिखूँगी, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और 10 जाने को एक बच जाता ना रिमाइंडर, तो वो मॉड्यूलस इज 3। ठीक है, तो ऐसे। और एक बच गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए SQRT फंक्शन होता है, फंक्शन भी कहो, बाकी आप ऐसे SQRT लिख के, और क्योंकि ये ना वो है हमारा कांस्टेंट है ना कि वेरिएबल, तो आप इसको असाइन ना करो तो ज़्यादा बढ़िया। SQRT करके यू कैन जस्ट सिंपली राइट परफेक्ट वगैरह कोई भी, एंड आप इसका वैल्यू देखेंगे यहाँ आएगा ना कि एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये हमने हमारा कांस्टेंट वेरिएबल किया है, क्योंकि पता है भाई कि 100 की वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगी स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट करने से, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू तो वही रहेगी, तो इसलिए हमने उसको एज अ वेरिएबल नहीं किया। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसके आगे जब SQRT करके लेस देन डैश डालोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो कंसोल को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट टर्मिनल। सब कुछ जो आउटपुट आपको दिखना चाहिए वो कंसोल होना चाहिए। वेरिएबल्स की वैल्यू सब आती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आज का इतना। अब थोड़ा सा कांस्टेंट वाला पार्ट है, दैट आई विल टेल यू। हाँ, वो वाली फाइल से जिससे हम स्टडी कर रहे थे ऑलरेडी। हाँ, तो ये हमने यहाँ पे कल पिछले वीडियो में छोड़ा था दैट ये 4 एरियाज़ होते हैं। स्क्रिप्ट एरिया जहाँ पे भी हम कोड कर रहे थे, कंसोल जहाँ हमारा आउटपुट आया, एनवायरनमेंट जहाँ हमारा वेरिएबल की असाइनमेंट और बाकी सब कुछ आएगा। हम देखेंगे अभी जो सीक्वेंस वगैरह जब हम बनाएंगे तो उसकी आउटपुट वैल्यू भी वहीं जाएगी, क्योंकि वो चेंज होएगा। देन प्लॉट्स एरिया जहाँ पे हम हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस और ये सब कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करके यहीं से उठाते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट हमने देख ली कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, a की वैल्यू, x जैसे भी है। तो आपको मैंने बता दिया कि इक्वेशंस नहीं है, ये असाइनमेंट है। तो वेरिएबल्स, प्लीज़ नोट दैट r इज़ केस सेंसिटिव। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, r केस सेंसिटिव। आपकी एक भी डिफरेंस स्पेलिंग हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, देन r वो पिकअप नहीं करेगा, आपका आंसर नहीं आएगा, आपको एरर शो कर देगा, राइट? तो ये ध्यान से करना। तो वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद लेटर A to Z, और A to Z स्मॉल में। हम ज़्यादातर स्मॉल वाला प्रेफर करते हैं बिकॉज यूनिफॉर्मिटी रहती है, हमें भूलने का वो रहता नहीं है। जो हमारा बिग केसेस है वो का ही हम बिग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम टाइपिंग करते टाइम मैक्सिमम टाइम स्मॉल केसेस में ही वर्क कर रहे होते हैं, तो इसलिए स्मॉल केसेस हम रखते हैं। और अ पीरियड फॉलोड बाय अ लेटर। ठीक है, दे में इंक्लूड नंबर्स, लेटर, अंडरस्कोर और पीरियड्स। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सब कुछ ही हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज़ करते, जैसे परसेंटेज। ये सारे हम असाइनमेंट वेरिएबल टाइम नहीं यूज़ करते, वैसे ये सारे हमारे यूज़ होते हैं। जैसे हमने अब इंटीजर जब करा तो वो फंक्शन की तरह यूज़ होते हैं। तो परसेंटेज हमने देखा इंटीजर के इंटीजर डिवीजन के लिए यूज़ होता है। डबल परसेंटेज हमारा मॉड्यूलस के लिए यूज़ होता है, तो वो वैसे है। तो ये नेम्स ऑफ वेरिएबल के फॉर्म में नहीं आ सकते। रिजर्व्ड वर्ड्स का मैंने आपको बता दिया, इफ एल्स, ट्रू फॉल्स, ये नहीं हो सकता, यूज़ नहीं कर सकते हम। और कोटेशन मार्क्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैंने बता दिया आपको। एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस, इंटीजर डिवीजन एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट हो गया। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। सो वेरिएबल्स इन आर इज़ अ नेम दैट स्टोर्स अ वैल्यू, नंबर, वेक्टर, डाटा फ्रेम और फंक्शन। ठीक है, सो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब कुछ क्या है। नंबर तो मैंने आपको बता दिया, नंबर तो पता ही है आपको क्या होता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है, जैसे मैं अभी बात कर रही थी सीक्वेंस वगैरह, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स को वेक्टर कहते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ वेक्टर को अलॉट कैसे करते हैं। हम लिखें अगर वेक्टर ऐसे करेंगे और फिर हम लिखेंगे 1 डबल डॉट 10, हम ऐसे कॉलन डालते हैं ताकि हमें इसकी वेक्टर की वैल्यू साइन हो जाए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 to 10 उसने खुद वैल्यूज असाइन कर दी, मैंने सिर्फ सीक्वेंस डाली है। तो आप ऐसे इसको जब कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर हो जाते हैं तो दैट्स कॉल्ड वेक्टर, राइट? उसके बाद डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम होता है जब हम हमारे डेटा
हमारे जो नंबर्स हैं उसको एक टैबुलेटेड फॉर्म में व्यू करते हैं। डेटा फ्रेम का भी एक फंक्शन होता है, दैट आई विल टीच यू थोड़ी क्लासेस के बाद, क्योंकि वो डेटा फ्रेम एक पूरा कॉन्सेप्ट ही है। फंक्शन में फंक्शन इज़, जैसे हम एक्सेल में फंक्शंस यूज़ करते हैं वैसे फंक्शंस आर में भी होते हैं। देन डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिया, लेस देन डैश एंड इक्वल टू हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारे बाद में इक्वल टू बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लेस देन और डैश का साइन यूज़ करते हैं। देन टॉकिंग अबाउट वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद लेटर दैट कैन इंक्लूड नंबर्स, अंडरस्कोर बट नॉट द स्पेशल कैरेक्टर्स। ये सेम हो रही है रिपीट चीज़, ठीक है। वेरिएबल केस सेंसिटिव कैन बी रीअसाइन, जैसे मैंने आपको करके बताया, सबसे पहले मैंने x को 2 वैल्यू दी थी, देन मैंने जब x इज इक्वल टू 3 किया तो उसको फिर से रन करना पड़ेगा, वरना वो चेंज नहीं होगा। कंट्रोल एंटर, जितनी बार आप चेंजेस कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, डिलीशंस कर रहे हो, आपको हर बार कंट्रोल एंटर दबाना है ताकि वो फंक्शन रन भी हो, ठीक है। सो वेरिएबल डोंट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, आर इज डायनेमिकली टाइप, ठीक है, तो वो चेंज हो सकता है, वही बोल रहे होगा। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स जैसे कि आपको पता ही है कि वेरिएबल्स का मतलब ही होता है जो चेंज हो, डायनेमिक हो, बट कॉन्स्टेंट्स फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू होती है जो मॉडिफाई नहीं हो सकती अगर आपने एक बार उसको असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू 3.14 है तो वो 3.14 ही रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉन्स्टेंट, राइट। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट कौन कौन से होते हैं? न्यूमेरिक एंड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स मैंने आपको बता दिया, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट ये रहा, प्रिंट एक्स मैंने आपको फंक्शन बता दिया। ये क्लास एंड टाइप ऑफ है, ये थोड़ा हम करेंगे कांस्टेंट्स का, जब मैं प्रैक्टिकल वाला लूँगी नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिकल करवा दूँगी। ये यहाँ पे बता देगा कि क्लास ऑफ वेरिएबल क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक कांस्टेंट है तो क्लास ऑफ वेरिएबल न्यूमेरिक आएगा वहाँ पे, या डबल लिखेंगे तो वो न्यूमेरिक होगा, ठीक है। टाइप ऑफ में भी वो बता देता है कि ये कैरेक्टर है कि क्या है, ठीक है। तो ग्रीटिंग्स ऐसे करके, स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं जो सेकेंड नंबर के, स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब होता है कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अपने किसी टीचर ने अपनी क्लास की नेम्स की लिस्ट बनानी है, तो नेम्स में तो हम नंबर्स और इंटीजर्स यूज़ नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे आएंगे कैरेक्टर्स और टेक्स्ट आएगा, तो वो स्ट्रिंग्स उसको बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। तो उसमें हम जब लिस्ट बनाने जाएंगे तो वहाँ पे हम हर बार जब स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो हम ऐसे यूज़ करेंगे ताकि वो उसको एज अ टेक्स्ट आइडेंटिफाई कर पाए आर। तो प्रिंट में भी प्रिंट कमांड उसने क्लास पर, ये यहाँ पे वो बता देगा कैरेक्टर है, इसमें क्लास और टाइप ऑफ सेम होते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर है तो इसमें चेंज क्या ही होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया लॉजिकल कांस्टेंट। लॉजिकल कांस्टेंट को बूलियन कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। लॉजिकल कांस्टेंट्स होते हैं जो येस या नो या ट्रू या फॉल्स, मतलब ये सिर्फ डबल जो पेयर वर्ड्स हैं जो हमारे ऑलरेडी असाइंड है उसमें आंसर्स देते हैं। सो ट्रू और फॉल्स, और ध्यान रखना जब बाद में आप लॉजिकल कांस्टेंट्स का यूज़ करोगे तो उसको या तो ट्रू फॉल्स ज़्यादातर यूज़ होता है, तो ट्रू के लिए सारे TRUE, सारे फॉल्स के लिए FALSE सब कैपिटल में होना चाहिए, तभी वो रन करेगा। और अगर आप पूरा नहीं टाइप करना चाहते तो सिर्फ T कैपिटल और F कैपिटल लिख दोगे तभी वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आगे स्पेशल कांस्टेंट। स्पेशल कांस्टेंट्स में 3 ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा पॉपुलर है, नल, नॉट अ नंबर एंड देन इन्फिनिटी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो नल होता है कि जब अनआइडेंटिफाइड हो, जब एरर आता है या फिर हम किसी चीज़ को हम नंबर बोल सकते हैं कि अगर ये हम लिखें कि ये ब्लैंक है तो उसका मुझे कंसोल में आउटपुट नल आना चाहिए, तो वैसे आता है। नॉट अ नंबर, अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करें बाय 0, हम 10 से करना चाहते थे, 1 हमारे से टाइप नहीं हुआ, 0 हो गया, तो वो नंबर नहीं है, वो अनडिफाइंड आ जाएगा, वो इन्फिनिटी में आंसर चला जाएगा, वो नॉट नंबर वो उसमें उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिल्ट इन कांस्टेंट, जैसे मैंने बोला कि पाई, उसकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है। लेटर्स, अगर आप लेटर्स ऐसे टाइप करोगे, मैं आपको बता देती हूँ मंथ एंड एब्रीविएशन वाला भी, अगर आप लेटर्स ऐसे टाइप करोगे ना तो वो आपको, ये देखोगे यहाँ पे आपको फंक्शन आ जाएगा, ये बिल्ट इन कांस्टेंट है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप करो कंट्रोल एंटर, तो वो देखो सारे उसने कैपिटल लेटर्स लिखे, क्यों? क्योंकि हमने टाइप ही कैपिटल्स में किया। अगर अब मैं स्मॉल में लिखूँ तो उसने ABC छोटे में लिखेगा, ठीक है। तो ये दोनों में हो गया। अब मंथ्स के नाम है, मैंने स्मॉल्स में लिख दिया मंथ्स,
ना एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा वो एरर दे देगा। मैंने मंथ्स लिख दिया तो वो एरर आ गया। मंथ डॉट नेम होता है। देन यू कैन सी सभी उसने नेम दे दिए। उसके बाद अगर आपको एब्रीविएशन में चाहिए तो मंथ डॉट ABB करके हमारा फंक्शन होता है, देन वो शॉर्ट में लिखेगा। तो ये हो गया। पाई के लिए भी आप टाइप कर दोगे वो आ जाएगा। पाई भी लिखते हैं 3.14 उसने वैल्यू दे दी। ठीक है, पाई लेटर्स मंथ हो गया। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, वैल्यू वेरिएबल की चेंज हो सकती है, कांस्टेंट की नहीं हो सकती, वो फिक्स होती है। एग्जांपल अभी मैंने आपको सारा बता दिया। यूज़ क्या होता है, वेरिएबल में डायनेमिक डेटा शो होता है, स्टोर होता है, जो चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट में फिक्स होता है, वो चेंज नहीं कर सकते। और बस आज के लिए हमारा टॉपिक हो चुका है फिनिश। नेक्स्ट में हम डेटा स्ट्रक्चर और कॉन्स्टेंट्स को अलॉटमेंट, टाइप ऑफ और क्लास ऑफ कर देंगे। या मैं आपको ये टाइप ऑफ क्लास ऑफ बता ही देती हूँ थोड़ा सा यही है। अब जैसे हम मेरे को करना है क्लास ऑफ चेक करना है एक्स की, क्लास चेक करनी है एक्स की, तो वो न्यूमेरिक है। क्यों? क्योंकि हमने एक्स को वैल्यू क्या अलॉट की है 3। ठीक है, तो वो न्यूमेरिक आ गया। अब अगर मेरे को टाइप ऑफ चेक करना एक्स का ही, तो वो डबल आ गया। ठीक है, ये सिर्फ न्यूमेरिक डेटा के लिए दो अलग अलग देते हैं। अगर मैं हमारे टेक्स्ट के लिए करूँगी तो वो कैरेक्टर वाइज ही शो करेगा, वो कैरेक्टर ही शो करेगा। जैसे अब मैं ग्रीटिंग्स वाला करती हूँ, ग्रीटिंग्स। अब क्योंकि मैं टेक्स्ट दे रही हूँ तो मेरे को दोनों कोटेशन में लिखना पड़ेगा हेलो। तो आप देखोगे कि अरे यार मैं डैश नहीं डाला, तो ये अलॉट हो गया ग्रीटिंग्स हेलो को। तो अगर मैं करूँ टाइप ऑफ ग्रीटिंग्स, कंट्रोल एंटर, तो आप देख सकते हैं इसमें करेक्टर दिख दिया। अब मैं क्लास ऑफ भी करूँगी ना वो तब भी करेक्टर लिखेगा, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता। क्लास ऑफ और टाइप ऑफ जो कैरेक्टर के लिए होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए होता है, वो सेम रहता है। तो ये हो गया हमारा। अपन ने कुछ रह गया ना, दो ही चीज़ थी। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, वैल्यू वेरिएबल की चेंज हो सकती है, कांस्टेंट की नहीं हो सकती, वो फिक्स होती है। एग्जांपल अभी मैंने आपको सारा बता दिया। यूज़ क्या होता है, वेरिएबल में डायनेमिक डेटा शो होता है, स्टोर होता है, जो चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट में फिक्स होता है, वो चेंज नहीं कर सकते। और बस आज के लिए हमारा टॉपिक हो चुका है फिनिश। नेक्स्ट में हम डेटा स्ट्रक्चर और कॉन्स्टेंट्स को अलॉटमेंट, टाइप ऑफ और क्लास ऑफ कर देंगे। या मैं आपको ये टाइप ऑफ क्लास ऑफ बता ही देती हूँ थोड़ा सा यही है। अब जैसे हम मेरे को करना है क्लास ऑफ चेक करना है एक्स की, क्लास चेक करनी है एक्स की, तो वो न्यूमेरिक है। क्यों? क्योंकि हमने एक्स को वैल्यू क्या अलॉट की है 3। ठीक है, तो वो न्यूमेरिक आ गया। अब अगर मेरे को टाइप ऑफ चेक करना एक्स का ही, तो वो डबल आ गया। ठीक है, ये सिर्फ न्यूमेरिक डेटा के लिए दो अलग अलग देते हैं। अगर मैं हमारे लॉजिकल कैरेक्टर ट्रू फॉल्स के लिए मैं आपको बता दूंगी, और स्पेशल कांस्टेंट ये, क्योंकि ना ये पूरा अलग से अलॉटमेंट के अलग से असाइनमेंट करेंगे, उस पर लॉजिकल और स्पेशल कांस्टेंट अप्लाई होंगे। स्ट्रिंग तक मैंने आपको बता दिया, दो टॉपिक ये, और फिर उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे आर में। और हमारा आज का टॉपिक हो गया वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन आर। और जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप कंट्रोल एस दबा देना फॉर सेविंग। ठीक, आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, यू कैन ऑलवेज कमेंट। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड रिप्लाई भी करती हूँ। आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं जितने भी कमेंट्स आए हैं, आप रिप्लाई टू देम। तो कोई भी दिक्कत है यू कैन मेंशन इन द कमेंट। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि ये वाली वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन। मैं उस टाइप क्वेश्चन उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। एक्सेल वाला पार्ट हम देख लेंगे बीच में, बिकॉज वो थोड़ी सी 4-5-6 वीडियोज़ हैं एंड वो काफ़ी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ से रेफर कर लेते हैं। आर इज समथिंग न्यू एंड आई नो कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिट चाहिए। अभी कईयों के टेस्ट भी होंगे इस मंथ में, अप्रैल में, सिंस मई में एग्जाम्स हैं, तो यू कैन रेफर। मैं पहले आर की वीडियोज़ डाल दूँगी। ओके, एक्सेल वाला पार्ट हम देख लेंगे बीच में, बिकॉज वो थोड़ी सी 4-5-6 वीडियोज़ हैं एंड वो काफ़ी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ से रेफर कर लेते हैं। आर इज समथिंग न्यू, सो लाइक द वीडियो इफ़ यू understood everything, and comment down if you have any issues or you want to give any suggestions or something like that, and share it with your friends, and subscribe to channel for more related content to business analytics. I might be doing some other subjects of the 6th semester of commerce stream, of course. If you want me to upload the videos of other subjects, you can comment down. Okay, so thank you so much. This is it for the video. Share it with your friends ताकि सबका भला हो. Thank you so much.